today's edition of Value Talks. We have with us Mr. Gourav Jain today, who is a trainer, investor, and an authority on real estate investment trust and the InvITs or the infra investment trust, as they are called. We have invited him to today give us some basic information about the structure and aspects of REITs and how retail investors can participate in this particular asset class. To his credit, Gaurav sir also has written 2 books which are available on Amazon, and he also is a trainer for real estate investments and real estate investment trust. He runs an organization by the name of REITSPro.com, and we welcome him today on the talk. Good evening, Gaurav sir. How are you doing? Thank you, Vipulji. I'm good. Thank you so much. Right, sir. And So, thank you for giving me this opportunity to be with your members here. And I think we should be able to solve some basic questions on REITs that they would have. So whatever you feel are good for your audience, you could probably give me that kind of a question, and I'll be able to. Sure, sir. Of that. Majority of my audience are either officers of the Indian Armed Forces or MBA from the Ivy League institutes. As Okay. I am myself an ex-officer from the Indian Armed Forces and an alumni of MDI Gurgaon. Okay. So Okay. majority of them are people who are in corporates or government service, and they are from the upper salaried class of the economy. And a lot of them have been investing in real estate whenever they get an opportunity. But REITs is something which is new, and people would like to know more about this as an asset class. So my first question to you would be, sir, what is REITs in simple terms for a layman to understand? Okay. So, real estate investment trust, as the name suggests, is an investment instrument for investing in real estate. So, if you really look at it, it's like a two-in-one. It's a slice of the capital markets that you get, as well as a slice of properties. I will, as a definition, real estate investment trust means that you are able to buy real estate which is commercial in nature, rent generating, and regulated by the stock exchange. So that's one part. However, to make it clearer, I can share a slide if you have the provision to do it. Okay, so now if you look at it, there is an ad here which I'm sharing. So if you see here, there is something called ROI returns 5 to 7%, and there are various options listed. This is from a classifieds ad. So what a person does is spends a whole lot of money and gets commercial property which is rented out, and he gets a return. So the same thing is what you do when you buy REITs, but it's a much larger chunk that you have to invest, and the returns are quite similar, and it replicates what properties do, but with the ease of stock markets. That's the basic definition of what REITs would do. थोड़ा सा और simplify करते हैं इसको. तो आप समझिए कि कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने कंप्लीटेड रेंट जनरेटिंग एसेट्स, जो एक तरह से कमर्शियल ऑफिसेज हैं या मॉल्स हैं, उन्होंने वो मॉल्स लिए हुए हैं, ऑफिस स्पेसेस लिए हुए हैं जो ऑलरेडी रेंटेड है और रेंट दे रहे हैं. तो उसको वो अपने इन्वेस्टर्स को उसके शेयर्स देते हैं, and the investors get that rental in return for holding those shares. So it's like holding property, but a small part of the property. And you can buy these in the stock exchange. These shares you can buy in the stock exchange. Is this clearer, Vipul ji? मैं जो समझाऊं सर, मैं बोलता हूँ, आप मुझे करेक्ट प्लीज नहीं समझ. तो मानिए एक कंपनी है जिसने एक 500 करोड़ का कमर्शियल ऑफिस स्पेस खरीद लिया. जी. और उसके बाद उसने उसमें 50,000 शेयर्स बना दिए. 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 50,000. बिल्कुल. और वो 50,000 शेयर्स के साथ में अब उसने उस कंपनी को लिस्ट कर दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां भी वो लिस्ट कर सकते थे. ठीक बात है. और मैं उसमें से जाकर के अपना एक शेयर खरीद लेता हूँ. बिल्कुल.
एक दो तीन, जो भी मेरी जितनी ठीक क्षमता है, बात, जैसे ठीक मैं बात, कमिट करूँ। ठीक अब बात है। जो उस कंपनी को रेंट मिलेगा उस पर्टिकुलर ऑफिस स्पेस से, उसमें से एज अ शेयर होल्डर जो मेरा हिस्सा है वो मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कॉन्सेप्ट, एंड यू हैव रियली सिंप्लीफाइड इट, एंड दैट्स ग्रेट, दैट्स हाउ इट वुड वर्क, दैट्स परफेक्ट। ये तो सर आपने बताया, बट ये कब आए रीच इंडिया में? तो अब कितने रीट्स हैं ऑलरेडी, थिंग्स लाइक दैट? Okay, so the REITs came into India actually in 2019. In 2019 was the first REIT listing, which was Embassy REIT, Embassy Office Park REIT. और उसके बाद दो और REITs आ चुके हैं, एक माइंड स्पेस और ब्रुकफील्ड REIT. तो इस टाइम हमारे पास तीन REITs इंडिया में हैं, and they basically hold commercial real estate in terms of office spaces, and they are both listed on the BSE as well as NSE. What is the size of these three REITs, sir? And where are the So majority holdings? See, most of these they run into several thousand crores. So, for example, Embassy rate is upward of say 40,000 crores. That's just the size. Brookfield is smaller, about 12 to 15,000 crores. And each of these people now we don't need to get bogged down by these numbers because हमें उससे कोई मतलब नहीं कितने करोड़ है, हमें अपने से मतलब है कि हमारे को क्या मिल रहा है. तो Right. अगर आप देखें तो ये these since these are listed on stock exchanges, you can buy a share which ranges anywhere between around 320 to 380 370 rupees per share, and you can buy it on the stock exchange, और जितना आपका प्रो राटा अमाउंट है वो आपको उसका रेंट मिलता है. ₹3.20 या 3,20,000? सॉरी सॉरी 320 रुपीज टू 370 रुपीज पर यूनिट. मतलब जैसे फॉर अच्छा, एग्जांपल राइट नाउ ब्रुकफील्ड इज अराउंड 320 रुपीज, माइंड स्पेस इज अराउंड 360 रुपीज, एंड एम्बेसी इज अराउंड 350 रुपीज. मतलब बेसिकली 300 से लेकर के 400 रुपए के बीच में जो है वो इनका शेयर्स अवेलेबल है सर। बिल्कुल, एंड यू कैन बाय इवन वन शेयर, आप एक शेयर भी ले सकते हो, आप हजार भी ले सकते हो, लाख शेयर भी ले सकते हो. वो तो इट्स अप मतलब टू यू. वन एंड मल्टीपल्स में अवेलेबल है ना सर, जितना बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, सो वन शेयर इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस जिसका आप ये इक्विटी शेयर है, और उसका करेक्ट, अंडरलाइंग एसेट इज द ऑफिसेज व्हिच दे आर मैनेजिंग। एब्सोल्युटली, इट्स द ऑफिसेज दैट दे आर मैनेजिंग. और जो उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन है वो लोगों को मिलता रहता होगा सर। तो इसका क्योंकि लाइक यू राइटली सेड कि अंडरलाइंग जो है प्रॉपर्टी है, तो इसका दो आपको रिटर्न्स मिलते हैं. एक तो वो जो रेंटल मिलता है विच रेंजेस अराउंड टुडे 5.5 to 6%, 6.5%, एंड देन जो कैपिटल अप्रिसिएशन आता है, लाइक एवरीबडी नोज कि ऑफिस स्पेसेस या कमर्शियल स्पेसेस में अराउंड 15% इज अ स्टैंडर्ड क्लॉज कि हर every 3 years there'll be an escalation of rent in 15%. Yeah, so one is that appreciation also comes in forms of rentals, and the same thing as the economy grows, as the value of assets grows, the value of the underlying asset increases, and that is reflected in the stock markets. That same increase depending on the buying and selling perceptions of the investors. ओके सर, जनरली क्या रिटर्न्स आ जाते हैं इसमें रीट्स में? देखिए जैसे मैंने आपको अभी एक स्नैपशॉट दिखाया था जहां पे 5 to 7% एक रिटर्न दिया था, तो अप्रोक्सीमेटली ये तो आपके रेकरिंग रिटर्न्स आ जाते हैं, और साथ में एप्रिसिएशन जो है हम मान के चलते हैं कि 5-7% एप्रिसिएशन आ सकता है. तो 12 से 15% इज व्हाट द जनरल एस्टिमेट इज व्हाट रीड्स गिव, बट इट इज नॉट अ सैक्रोसैंक्ट फिगर. ये ऐसा कोई मतलब जिसे कहते हैं प्रॉमिस नहीं है. हाउएवर अगर आप इसका एक और पहलू देखें तो 5 to 7% जो मिलता है वो majority part is tax free. So for people who are in the very high tax bracket, the return is amplified much more. Why is that tax free? मतलब what is the reason for So yeah, so it's tax free because it's been made out that way. Indian tax laws जो हैं वो उसको उसके जो रिटर्न्स को एग्जेम्प्ट करते हैं. तो थोड़ा सा ये और डिटेल डिस्कशन है, बट अगर हम बहुत ब्रीफली समझें तो इसका जो रिटर्न्स है वो तीन चार टाइप से आता है. सो वन इज द इंटरेस्ट पार्ट, वन इज द डिविडेंड पार्ट, वन इज द रिटर्न ऑफ कैपिटल पार्ट, एंड द फोर्थ इज द रेंटल. सो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि तीन चार टाइप से आता है. वो नॉमेनक्लेचर से हमें कोई मतलब नहीं, बट अल्टीमेटली क्या है कि
For example, Embassy REIT is giving more than 80% of this 6 5 6% टैक्स फ्री. तो जो इन्वेस्टर है जो एक तरह से 30 35% के ब्रैकेट में है, उसको अगर 5.5 या 6% रिटर्न दिख रहा है हाथ में आता हुआ, उसको एक्चुअली वो इफेक्टिवली 8% के करीब पहुंचता है रिटर्न इस वक्त. Because of it being tax free. Because of the returns being tax free, yes, the recurring returns being tax free. And apart from that, capital appreciation hai. So in, if you know, if you really want to see what the returns that they have given over a period of time, I would ask the viewers to see the website जो आपने अभी mention किया था, REITSPro.com, जो मेरा banner भी है पीछे देखें तो इसमें there is an overview section which gives you exact calculations from the date of the issue till now and how much the returns are for each REIT that is there. Alright. सर मुझे एक बात बताएं. So if I essentially understand, instead of buying a commercial property from जो generally लोग करते हैं, I can directly go and buy a REIT and I mean there is कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें आप 50,000 लाख रुपए ही लगा सकते हैं. आप जितना भी चाहें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. बिल्कुल. And सो it is, बिल्कुल मुझे बेचना भी इजी है. मैं 1 यूनिट बेच सकता हूँ, 5 यूनिट बेच सकता हूँ. So I don't need to. I mean, it gives me that liquidity also of being able to make a sale. Yeah, so like I said in the beginning only, it's ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है, the ease of the stock markets and the returns of property. तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो REITs एक तरह से उभर के आता है. बिकॉज और थर्ड चीज एक बहुत बड़ी चीज है कि हम एवरीबॉडी नोज दैट रियल एस्टेट मार्केट्स आर वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट. बहुत मतलब बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं, लीगल इश्यूज होते हैं, मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं. तो रीट्स में एक तरह से यू हैव अ प्रोफेशनल टीम हु आर मैनेजिंग इट एंड यू आर not liable to do those things that a property manager has to do, but get similar returns. Of course, everybody charges a fees. So, wo jo management team hai, they will charge their fees over a period of time. But still, you will get returns which are quite like holding commercial asset. But देखिए हर चीज के दो पहलू हैं. जो आपने कहा उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जाम्पल आप जो रीट्स हैं उसमें रीट्स आज के दिन सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सो इट कैन रियली नॉट बी अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका कमर्शियल एसेट्स है. दूसरा, जो कई बार आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में अपस्विंग्स मिलते हैं वो आपको नहीं मिलता, बिकॉज बाय नेचर रीट्स आर सपोज टू इन्वेस्ट इन रेंट जनरेटिंग कमर्शियल एसेट्स. बट अब एक एडवांटेज इसका जो और है वो, जैसे आपने मेरे को अपना सेगमेंट बताया, जो जो लोग हमसे जुड़े हैं इस वक्त, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसका रिटायरमेंट प्लानिंग और कॉर्पस प्लानिंग में होता है रीट्स का. इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर इट्स वन ऑफ द फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पेंशन फंड्स बिकॉज ऑफ द स्टेबल रिटर्न्स इट ऑफर्स अलोंग विथ काउंटरिंग इन्फ्लेशन. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रीट्स का. जैसे बहुत सारे लोग जो रिटायर होते हैं कई बार चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी लें, उससे रेंटल्स करें, लेकिन क्या होता है वो एट अ सर्टेन एज दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट. दैट्स वेयर रीट्स में वो मैनेजमेंट भी मिल सकता है और रेगुलर रिटर्न्स भी मिल सकती है विद द ईज ऑफ कि आप थोड़ा लेना चाहें थोड़ा ले लें, थोड़े में थोड़ा जो है लिक्विडेट करना चाहें थोड़ा कर लें. और एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आपकी वेकेंसी पीरियड, जो कि एक अगर आपने सपोज 1 करोड़ रुपया है और आपने एक कमर्शियल एस्टेट ले लिया और बाय चांस उसमें वेकेंसी हो गई, तो यू नॉट गेटिंग एनीथिंग हियर. व्हाट इज देयर, बिकॉज इतने आप हजारों करोड़ के एसेट्स हैं, कुछ ना कुछ तो रेंट आउट होएगा ही विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. सो इट्स नेवर दैट यू आर लेफ्ट विद नथिंग इन हैंड. सो दैट्स अ वेरी वेरी रेयर चांस बिकॉज ऑफ वेकेंसी रेट. और क्या रिस्क हो सकते हैं सर? सो एक रिस्क ये हो सकता है कि देखिए, रिस्क क्या कह दे, नेगेटिव ये हो सकता है कि काफी सारे लोग प्रॉपर्टी में, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं. तो इसमें टैक्सेशन का, जैसे 54, जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहेगा इंसान, ये उसके लिए क्वालिफाई नहीं होता टैक्सेशन के लिए. दूसरा ये है कि एक नेगेटिव जो है, आई विल नॉट से रिस्क एज मच, नेगेटिव ये है कि प्राइड ऑफ ओनरशिप नहीं होती. मतलब यूज के लिए प्राइड ऑफ ओनरशिप वो चीजें नहीं है इसके लिए. व्हाट अबाउट वैल्यूएशन एस्पेक्ट? वैल्यूएशन एस्पेक्ट, ओके. सो ये
हमेशा वैल्यूएशन जो है एक बहुत ट्रिकी इशू रहा है प्रॉपर्टीज में, और एज एवरीबडी नोज वैल्यूएशन इज वेरी वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट. नाउ सेबी अगेन, लाइक आई सेड, इट्स अ रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सेबी इसको रेगुलेट करता है. तो सेबी ने रूल्स बनाए हुए हैं कि एवरी 6 मंथ्स एवरी रीट हैज टू हैव अ प्रोफेशनल वैल्यूअर जो कि वैल्यूएशन देगा, एंड दोज वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आर वेरी मच अ पब्लिक अफेयर. तो Valuation of the underlying asset. of all underlying assets, correct. So a report is available for all REITs for all underlying assets, and this is a periodic report. It's not a one-off thing. ये हर 6 महीने में ये रिपोर्ट आती है, और उससे एक तरह से आपका एनएवी डिराइव होता है कि नेट एसेट वैल्यू इस एक शेयर की कितनी होनी चाहिए. एक, इसको हम शेयर नहीं कहते, रीट्स को यूनिट्स कहते हैं, कि रीट यूनिट की प्राइस कितनी होनी चाहिए. Okay. And this is जो आप REIT unit जो available है मुझे online, that जी, is overall the price of जितने भी underlying उस सबका undivided share है ना सर? सबका अनडिवाइडेड शेयर है. लाइक आपने पहला एग्जांपल दिया, 500 करोड़ के एसेट्स हैं, सपोज 500 करोड़ के एसेट्स हैं, और उसमें से 10,000 सपोज उसने यूनिट्स फ्लोट की हैं, तो 500 करोड़ डिवाइड बाय 10,000 एक की वैल्यू है. दैट मींस अगर 500 करोड़ में से सिर्फ 300 करोड़ ही रेंट पे चढ़ा, तो आपको उतना प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, 300 करोड़ का रेंट पे चढ़ जाएगा. तो Okay. इट इज नॉट कि आपका कोई स्पेसिफाइड या डिमार्केटेड एरिया है. बहुत बेसिक समझ आया सर. बाकी आपसे और आगे बात करेंगे. आई थिंक आप ट्रेनिंग भी देते हैं. सो फॉर द ऑडियंस, आई had spoken to Gaurav sir, and if any of you wishes to join his training, wherein you can also speak to him for real estate investment training and REITs trainings. Yeah, so you can go to the you can go to my website reitspro.com, which is there on the banner also. All right, sir. And Wonderful. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work